Iram Mushtaq, and I am student in Rehan AI Teacher Institute. And you know that I prepared a show which name is Sitare Iram Ke Saath, in which I introduce new people and I start conversation with stars and with wisdom. And I am an educator and podcast head host passionate about highlighting voices that inspire education and bring positive change. Today we will dive into the story, vision, and mission of an inspiring woman shaping the future of education in Pakistan. She is Mariam Zulfikar Training Wali, and she is my teacher. Now she is on stage with me. And let me introduce her to you. And she did MPhil in education, and she served as the vice principal at Rehan School Online Academy, and she has 8 year experience of teaching and academic administration. So, welcome, Miss Maria, on the stage. You are my most respectable teacher. I introduce you to our audience. Please introduce yourself to them. First of all, thank you so very much, Ms. Iram, for having me on your show. And I'm so obliged you waited for me for 3 hours. Thank you so very much for your patience as well. Myself, Mariam Zulfikar, training Wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy, and I'm providing my facilitation at Rehan AI Teacher Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. I'm residing in a village named as Kariwala Tehsil Shahpur, and its district is Nankana Sahab. It's a, you can say I'm working in a through online platform with Rehan Foundation, and I'm living in underprivileged village where lots of the opportunities as a female you can't go and explore for yourself. And I have done MPhil in education, as you explained about me, from Punjab University, and I have 8 years experience of conventional school as a teacher and as an administrator worker there. So this is the short introduction about me. Miss Mariam, in this podcast, we will try to talk in bilingual manner because our audience are only not English people. There are many, most of our audience are उर्दू स्पीकिंग. तो मैं ये चाहूँगी कि जो है हम बातें करें इंग्लिश में भी उर्दू में भी, तो ये हम सबके लिए जो है कन्वीनियंट रहेगा. तो अभी तो हमने मिस मरियम का इंट्रोडक्शन करवाया, वो करवाया इंग्लिश में. तो अब मैं उर्दू में मिस मरियम के बारे में बताऊँ कि हमारे एआई टीचर की जर्नी में ये जो मेरी पहली उस्ताद हैं. और अब मैं मिस मरियम से ये चाहूँगी कि वो उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ प्लीज़. बहुत शुक्रिया इरम आपका मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम मरीम जुल्फ़िकार है और मैं ट्रेनिंग वाली के नाम से जानी जाती हूँ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसका नाम करीवाला है, तहसील शाहपुट है और इसका ज़िला ननकाना साहब है। कहने को बिल्कुल छोटा सा गांव है और ये कोई भी नहीं सोच सकता कि एक छोटे से गांव में रहने वाली कोई भी औरत एक इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकती है, एक्सप्लोर कर सकती है। तो ये वाक़ई ही बहुत बड़ी और बहुत सारी हिंड्रेंस के बाद आप ये सारी चीज़ें करने के काबिल होते हैं, क्योंकि जो एक गाँव में रहते हुए और एक रिमोट एरिया में रहते हुए ये चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग इट। और इसके अलावा मैंने रेहान स्कूल को जॉइन करने से पहले मैं कन्वेंशन सिस्टम की ही बहुत बड़ी हामी थी और बहुत कुछ मैंने वहाँ पे किया भी। बट हमेशा एक फील होता था कि कोई डेफिशिएंसी है, कोई कम। अब मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। बट वो क्या करना था वो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये ज़रूर था कि कुछ डिफरेंट करने की हमेशा से ही कोशिश रही मेरी। मैंने टीचिंग बहुत छोटी एज से शुरू कर दी थी। आई वाज लाइक इन 8th ग्रेड और तब से मैंने टीचिंग को शुरू किया था, बट नॉट एज अ पैशन, नॉट एज अ चॉइस। वो जिसे कहते हैं ना कि एक लीडरशिप का रोल आपको सिर्फ दिया गया और बताया गया कि हाँ भाई आपने करना है एंड और आप ये करते जाओ। तो बस मुझे वो मेरे प्रिंसिपल स्कूल के जहाँ मैं पढ़ती थी उनको लगा कि ये कुछ कर सकती है, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू की। और फिर छोटे छोटे गोल ऐसे ही करते 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 पता नहीं कब मैं इवेंचुअली टीचर बन गई। और फिर मैंने जो है वो ग्रेजुएशन में जाके प्रॉपर अपनी टीचिंग करियर को स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मैंने इसको एज ए प्रोफेशनल जो है वो इसको अडॉप्ट कर दिया। सो मेरा प्रोफेशन शुरू में टीचिंग रहा शुरू से ही। सो मैंने 8 साल मुख्तलिफ रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन थे जहाँ मैं पढ़ाती रही। तो
बस यही है कि अब बहुत कुछ डिफरेंट करना था, लेकिन शायद वो हो नहीं पा रहा था, तो ये प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत डिफरेंस है आपके पास करने को। Okay, Miss Mariam, I prepared a list of many interesting questions for you, but we know that time is very limited for both of us. So मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपसे वो सवाल पूछूँ जिनसे जो है हमारे ऑडियंस पहले ना आशना है, या वो बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपसे ये देखती हूँ, आपकी टीचिंग में ऑब्ज़र्व करती हूँ कि आप जो है अब ऑनलाइन जो टीचिंग है एआई टूल की, उसकी बहुत बड़ी हामी है। और दूसरी तरफ कहीं मैंने ये बात भी रियलाइज़ की कि जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है, आप उससे कुछ खफा-खफा सी लगती हैं। तो आप मुझे ये बताएँगे कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दीज़ थिंग्स? एक्चुअली मुझे सिर्फ सिस्टम से थोड़ी सी शिकायतें या गिले समझ लिए ये हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो करंट नीड्स को या स्टूडेंट की नीड को नहीं समझ रहा। हम आज से अगर मैं बात करूं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन जो है वो 2011 में कंप्लीट की। गेस टिल नाउ 15 साल हो गए मुझे मेट्रिकुलेशन किए हुए, अभी तक मेट्रिक का वही सेम सिलेबस है जो मैंने पढ़ा था। मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है। हम कहते हैं ना कि जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आप खुद बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो जब सीखने को आपने किसी को सिखाना, तो आपके पास सीखने को कुछ है ही नहीं, तो आप दूसरे को क्या सिखाओगे नया? एक बार। और जब आप खुद अच्छा नहीं पढ़ा होता, जब आपको खुद समझ नहीं आती, लेकिन सिखाने से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो अगर ग्रेजुअली एंड स्लोली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स हम करिकुलम को बहुत ज्यादा रिवाइज कर लिया करें और बहुत सारी चीजें नई ऐड कर दें जो कि हमारे अगले 5 साल की जरूरत हो। जो हमने पिछले 5 साल करिकुलम में इम्प्लीमेंट किया, हमें समझ में आया कि ये वर्केबल नहीं था, ये वर्थ इट नहीं था हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, तो हमें चेंज कर देना चाहिए। नो डाउट हम चेंज का नारा लगाते हैं और हम चेंज करते भी हैं। जैसे अभी पिछले 2021 में एसएनसी का करिकुलम आ गया, 2019 में एसएनसी का करिकुलम आ गया। आई रिमेम्बर कोविड से पहले, सॉरी, कोविड में एसएनसी का नारा लग गया कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब वो करिकुलम तो इंट्रोड्यूस हो गया, बट मोर और लेस उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आई। दूसरी बात, वो चेंजिंग ना आने की रीजन ये थी कि जिन टीचर्स के थ्रू वो दोबारा से डिलीवर करवाया जाता, दे आर स्टिल एट द सेम पॉइंट। वो उसी जगह खड़े थे जहां उन्होंने खुद पढ़ा है। आपने पहले उनको ट्रेंड करने के लिए कुछ नहीं किया। दो कि आपने ट्रेनिंग्स दी, आपने वर्चुअल ट्रेनिंग करा दी और आपने समझा कि दैट्स इनफ, और वो 1 हफ्ते की आपने पूरी ट्रेनिंग कराई और उसके बाद खत्म। आपने कभी ये नहीं देखा कि वो ट्रेनिंग जो आपने 1 हफ्ते की दी थी, क्या वो रियल ग्राउंड बेसिस पे उस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है, अब हम किस तरह से उसको मजीद इम्प्रूव कर सके कि अगले 3 साल में हमारा बच्चा वो गोल अचीव कर ले जो हमने बुक्स में लिखे हुए हैं, जो हमने उस तरह से डिलीवर करवाने थे। अगर आप बुक को खोल के देखें, उसके अंदर समहाउ बहुत सारी बुक्स में कंटेंट कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर चलो आपने 2 चैप्टर और ऐड कर दिए, कुछ डिफरेंस दे भी दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने क्या किया, जो फर्स्ट ईयर का करिकुलम था वो उठा के आपने 9th क्लास में ऐड कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में जाके बच्चा वही पढ़ेगा, उसको क्या फायदा होगा? वो तो सेम सेम चीजें रही हैं आपकी। उसने कहा मैं पीछे सीखा है और मैं फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ूंगा ये, और वही बात है 2 साल पहले पढ़ी हुई है, अब मैं दोबारा क्यों सीखूंगा इसको। तो इसके साथ ही साथ आपका जो कन्वेंशनल सिस्टम है, वो आपके बच्चे को सिर्फ एक रेस में बता रहा है। मतलब मुझे याद है, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत चढ़ती थी इस बात से कि मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़नी, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैं कुछ और पढ़ लूँ, मैं कुछ और कर लूँ। तो हमने कभी इस चीज़ को फोकस ही नहीं किया कि हमारा बच्चा क्या करना चाह रहा है। मैंने क्यों ज्योग्राफी पढ़ी मुझे नहीं पता, मैंने क्यों हिस्ट्री पढ़ी मुझे नहीं पता, मैंने क्यों पाकिस्तान स्टडी पढ़ी मुझे नहीं पता। हमें आजकल पाकिस्तान स्टडी पढ़ने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे फोर फादर्स ने, इंसेस्टर्स ने कौन सी ऐसी कुर्बानियां दी कि पाकिस्तान मिल गया आपको। तो वो आपको सिंपली किसी भी एक एक स्टोरी आप पढ़ लेना तो आपको रियलाइज हो जाता है, और इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। आपको नहीं पता थे सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, क्या करना है आपने जान के सर सैयद अहमद ने क्या किया, वो भाई करके जो करना था उन्होंने। अब आज मेरी जरूरतें सर सैयद अहमद खान के करने से पूरी नहीं हो रही, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मुझे मिल रहा, तो मैं क्या करूँ सर सैयद अहमद को जान जान के कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो करते रहे, कितना लड़े, क्या कुछ किया। अब तो हमें ये सोचना है कि हमें पाकिस्तान मिल गया है, हमें इसको दुनिया की रेस में कैसे भगाना है। जैसे बाकी सारे मुल्क भाग रहे, इंडिया कितना भाग गया, उन्होंने तो कभी बैठ के नहीं सोचा नेहरू क्या कर गया, अब नेहरू की चीजों पे बैठे रहे। तो ये चीजें गुस्सा दिलाती हैं, ये चीजें जो है ये पैनिक करती हैं। वेरी गुड आंसर। और बहुत अच्छी तरह आपने ये कोशिश की कि जो आपके माइंड में चल रहा है वो आप कन्वे कर सकें।
तो इस पर मैं ये कहूँगी कि आप पूरे एज अ होल चेंज की बात करते हैं, नॉट ओनली द सिस्टम। आप ये चाहते हैं कि लोगों के माइंड में भी चेंज आए, हमारा कंटेंट भी चेंज हो, हमारी जो मतलब यानी कि थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो। तो ये एक बहुत बिग चेंज है और इसको टाइम लगेगा। तो द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ द वर्नेबिलिटी इन लीडरशिप एंड इनोवेशन। तो वर्नेबिलिटी जो है वो आपको कहाँ नज़र आती है लीडरशिप में और इनोवेशन में? फर्स्टली यू टेल मी अबाउट leadership and then in innovation. Um, if we talk about the leadership, then we are not actually having we are not having the leaders as who are learned and grew according to the leadership. They just got it from their forefathers. They have it like they this is their inheritance. That's it. That's not about if you fire any leader, he or she does not have any background regarding the leadership qualities. He didn't even listen. He didn't even read about leadership. He didn't even know how the problems and how are the changes and the basic ground realities at each and every uh, individual of the nation is facing right now. So this is the basic thing that we need to develop in our attitude, that we are developing the leaders, we are nurturing the leaders who are actually working on the real life grounds, and they know what are the realities and from which what are the basic things that they should need to improve gradually and slowly, and then they can provide the whole change throughout the nationwide. But if we are not actually considering those ground realities, which are, you can say, we need to prioritize which thing is the very basic thing and we need to just figure it out, and then the second number and then third and the fourth one. We are actually having the leaders right now, they are just focusing on their own family. What comes next after this politician, what comes after next this politician, that's it. These are the leaders we are having right now. But if we are actually follow the leadership things and we need to change our leaders, we need to develop and we need to learn about the leadership. First I need to know what are the problems for me and my team, and then gradually and slowly we need to create a team that build a proper leader, and then I am the leader of the team. I know what are the basic requirements of my team, what are the challenges of my team, and how we can cope up with these challenges. These are the very basic thing we are missing right now. In the same way, if we think this thing in the country wide, then we need to know about what are the basic needs that the people actually want to change, and they need to fix those things in a very early stages, rather than one can change at their own thing and next government will change according to their plan, and the next government will prepare another plan. They never ever followed the previous government's plan that is going on. We always think that no, this is not appropriate, we need to stop it and we have to develop our own plans. So this is how each and everything is going to unfortunately on destruction side, or not producing a very good amount of results that actually this nation needs a lot. Very good answer. Let me explain these things in Urdu too. तो मैं आपसे इसी सवाल को अगर उर्दू में करूँ कि आपको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है जब आप ये महसूस करती हैं कि हमारे लीडरशिप में, हमारी इनोवेशन में इतना ज़्यादा जो है कमज़ोरी है, वल्नरेबिलिटी है या हमें फुकदान है, तो आपको इतना प्रॉब्लम कैसे महसूस होता है या आपने कैसे ये समझा कि ये होना चाहिए? मतलब बहुत छोटी सी बात है कि अगर मुझे अपने घर के ही प्रॉब्लम फिक्स होते नहीं नजर आ रहे, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे मोहल्ले के प्रॉब्लम सही हो गए, मेरे गांव के प्रॉब्लम सही हो गए, और फिर मैं कहूँ हाँ अब हमारे शहर के प्रॉब्लम सही हो गए, और उसके बाद मेरे प्रोविंस के प्रॉब्लम सही हो गए, और फिर मेरे सारे प्रोविंसेस के प्रॉब्लम सही हो गए, और अब मेरी पूरी कौम के मसले सही हो गए। तो मसला ये है कि हम यही चीज़ तो नहीं समझ रहे कि मेरी कौम की एक ज़रूरत क्या है। मेरी कौम को ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ले, वो हम दे नहीं रहे। हम उस एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं जो कि हमारी नेशन की ज़रूरत भी नहीं है, और हम वो दे रहे हैं, और उसके बाद हम उन बच्चों को क्या प्रोड्यूस करें नहीं पता हमें। हम एक दौड़ में सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि फलाने एम फिल किया हुआ है, फलाने PhD कर लिया, फलाने ये कर लिया, फलाने, बट अनफॉर्चुनेटली एक PhD डॉक्टर डिग्री होल्डर इंडिविजुअल भी इतना ही
परेशान है इस मुल्क के तमाम हालात से, जितना कि एक अनपढ़ इंसान जिसको बिल्कुल नहीं पता और जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, वो भी ये जानता है कि मेरे क्या मसले हैं, मेरी क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं जो फिक्स नहीं हो रही। सेम प्रॉब्लम जो है वो एक डॉक्टर होल्डर डिग्री वाला फील कर रहा है कि मेरे घर के मसले नहीं पूरे हो रहे। आपका जितना एक्सपोजर होता जाएगा, आपकी चीजें आपको उतना तकलीफ देती जाएंगी। आपको पता है कि आपके बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियल फ्रीडम ही हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, उसके घर का मसला नहीं हल हो रहा, उसके पानी का मसला हल नहीं हो रहा, उसके रहने का मसला हल नहीं हो रहा, उसकी बीमारी का मसला हल नहीं हो रहा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आप फिजिकल फिट रहेंगे तो कुछ होगा ना, जब तक आप फिजिकल फिट ही नहीं है तो आपका क्या होगा। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया और वाक़ई हमारे मुल्क में ये मसाइल हैं, सबके साथ हैं और मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि मसाइल की वजह बाहर की बजाय हम खुद होते हैं और हम खुद कोशिश नहीं करते कि इन मसाइल को कैसे फ़िक्स करें या इनके लिए कोई नया सॉल्यूशन ढूँढें। तो मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये मसाइल जो हैं, ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं या अब जो आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं, ये सिस्टम जो है इन मसाइल को कैसे सॉल्व कर सकता है? अगर तो मैं इस सिस्टम की बात करूँ जो कि हमारा रेहान स्कूल का सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से चीज़ें बदलने में बहुत देर लगती है। जैसे कि आपने शुरू में ही एक बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि अगर आप एक फर्द से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि सिस्टम को बदलने की ज़रूरत होती है, और सिस्टम जो है वो एक दिन में नहीं बनते, एक साल में नहीं बनते, इट टेक्स टाइम। तो बिल्कुल इसी तरह से है, रेहान स्कूल सिस्टम अपनी हिस्से के दिए जला रहा है, और इंशाल्लाह इनकी रोशनी बहुत दूर तक सबको फील होगी और सब इस रोशनी की जद में ज़रूर आएंगे। तो अभी हमारा ये है कि हम चाहते हैं हम यहाँ एक तो फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करें, जिन बच्चों को अपने जो प्रॉब्लम जो हमारी गवर्नमेंट नहीं फिक्स कर रही, हम गवर्नमेंट को देख इस चीज़ पे कह भी नहीं रहे। हम ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने मसले खुद हल कर लें, हम वो प्रॉब्लम खुद फिक्स कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल तो ये होगा ना कि आपने अपने हिस्से का दिया जलाया कि नहीं जलाया। तो हम अपने अपने हिस्से के दिए जला रहे हैं, तो इंशाल्लाह मोर और लेस जल्दी ही इसका जो है वो रिजल्ट भी आ जाएंगे। रेहान स्कूल सिस्टम का मकसद ये है कि हम फ्यूचर लीडर्स को नर्चर करें और उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाएं, ना कि वो यही सोचते रह जाए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, फलां आएगा वो आगे ठीक करेगा। भाई क्यों ठीक करेगा, हमने इतने साल रह के देख लिया ना, किसी ने कुछ ठीक नहीं किया। तो जब तक आप अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे, कोई आपके हक के लिए नहीं लड़ेगा। आपको आपका हक चाहिए तो आपको खुद आके उसके लिए आवाज उठानी है, उसके लिए लड़ना है। तो यही हम अपने बच्चों को यहाँ बता रहे हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम खुद फिक्स करने हैं, यू विल बी द प्रॉब्लम सॉल्वर। और ग्रेजुअली एंड स्लोली आपके अपने मसले जब हल होना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने उस मोहल्ले के मसले हल करना शुरू कर दोगे। आपके मोहल्ले के मसले हल होंगे तो और आपके उस जगह पर रहते हुए जितने भी गांव है या जितने भी मोहल्ले हैं उनके मसले हल हो जाएंगे, और ये एक चेन इम्पैक्ट क्रिएट होता जाएगा, जिससे कि बहुत सारे दूसरे लोग भी आपके कारवां में शामिल होते जाएंगे, और फिर इसी तरह से हम बहुत जल्द बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ओके मिस मरियम, मैं इसी सिस्टम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि इस सिस्टम में हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, नो डाउट बच्चे हम देख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ना फिज़िक्स पढ़ाते हैं, ना हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ना हम जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ना हम कुरान पाक पढ़ाते हैं, इस्लामियात, हिस्ट्री, सोशल कुछ भी नहीं पढ़ाते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है ये हम क्यों नहीं पढ़ाते? और हम ये किस तरह अपने जो और लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि सिस्टम का हिस्सा बने, उनको इस बात को रियलाइज़ करवाएँ कि हम ये क्यों नहीं पढ़ाते और इसको हम कैसे जो है मैनेज करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को? ओके, हम इस सिस्टम में बिल्कुल नहीं पढ़ाते, ना कोई इंग्लिश है, ना कोई मैथ है, ना कोई ज्योग्राफी है, ना हिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है, ना फिजिक्स है, ना साइंस है। वो इसलिए नहीं है कि एक 12 साल का बच्चा जो हमारे साथ इनरोल होता है, मैक्सिमम 10 साल से एज शुरू होती है बच्चे की, और 12 साल तक 15 साल तक हम वो बच्चा लेते हैं जो, और उसके 8 साल का प्लान उसके पेरेंट्स को पूरा दिया जाता है। अब उस बच्चे को जो आपके पास 10 साल का बच्चा आया, वो आते तो बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेगा, उसको आते बायोलॉजी केमिस्ट्री चाहिए भी नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि इस केपेबल हो गया है कि उसको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो हम नहीं पढ़ाएंगे तब भी उसको। उसकी रीजन ये है कि ये सिस्टम आपकी कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं दे रहा आपको, और नहीं देगा भी। क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन जो है ना, वो आपके बच्चे को एक सिर्फ एक टॉपिक बताती है।
यहाँ पे आपका बच्चा एक टॉपिक नहीं सीखता, बल्कि एक दिन में 7 डिफरेंट टॉपिक सीख लेता है। अब उसकी एक्सप्लोरेशन डिफरेंट है। एक बच्चा सबसे पहले तो यहाँ पे उसकी दोस्ती करवाई जाती है उसके लैपटॉप से, ताकि बच्चे को लैपटॉप पे टाइपिंग, लैपटॉप के कीबोर्ड का पता हो, माउस को कैसे ऑपरेट करते हैं, स्क्रीन पे कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्लोली उसके एथिक्स पे काम किया जाता है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, उसकी पर्सनल एंटिटी पे काम किया जाता है, ताकि उसको पता हो कि उसको किसी भी चीज़ पे वो किसी से कम नहीं है। ही हैज़ टू बिलीव इन और हर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि हमारे बच्चों के अपने बिलीव ही बहुत शेटर्ड हुए हुए हैं। हमने कभी अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि आप सब कुछ कर सकते हो। जो एक 12 साल का बच्चा एक अमेरिकन सिटी में रहते हुए कर रहा है, आप भी उतने केपेबल हो। द थिंग इज दैट कि आपको वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड हुई, आपको वो वाली चीजें उस तरह से नहीं बताई जा रही जिस तरह से आपको करनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो इसी तरह से होगा जब आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे, आप अपने बच्चे को इस तरह से नर्चर करते जाएंगे कि वो सवाल पूछना शुरू करे। वो, क्योंकि हम बेसिकली इस सिस्टम के अंदर रहते हुए कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हमारा बच्चा ग्रेजुअली एंड स्लोली जब इस केपेबल हो जाएगा कि उसको पता होगा कि मैंने क्या करना है। अब जो अगर उस करने के बाद जो गोल उसने सेट कर लिया अपने लिए, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ट्रेनिंग वाली अपने लिए चूज किया। तो अगर मुझे 1 साल के बाद मुझे पता हो कि मैंने इस ट्रेनिंग वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए फिजिक्स पढ़नी है, तो मैं फिजिक्स पढ़ूंगी। अगर मुझे इस ट्रेनिंग वाले प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 3 साल के बाद मैथ्स की जरूरत पड़ती है, तो मैं मैथ्स भी पढ़ूंगी। ठीक है। लेकिन अभी मैंने जैसे कि बताया, ये सिस्टम बहुत बेबी है। अभी हमें सिर्फ 2.5 साल हुए, तो 2.5 साल के अंदर हम कोई इतना ड्रास्टिक चेंज आपको दिखा नहीं पा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ जिसने कि सारे प्रोसीजर को फॉलो किया और जहाँ जहाँ जिस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी उसने पढ़ी। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे कि भाई आपको एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए, आपको कन्वेंशन सिस्टम चाहिए, आप ले सकते हैं, आप वहाँ से एजुकेशन हासिल करें। हम ये नहीं करेंगे। उसकी रीज़न मैंने बता दी, क्योंकि हम अपने बच्चे को ओवर बर्डनाइज नहीं करना चाहते। हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि हमारा बच्चा जो है, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है ना केमिस्ट्री पढ़ने में, तो उसको केमिस्ट्री पढ़ा दो। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो साइंस पढ़े, तो हम क्यों साइंस पढ़ाएं? यहाँ बच्चे को 1 साल के अंदर सिर्फ अपने आप को सेल्फ रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वो बताई जाती है। और उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, उसके मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स पे काम किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रिलीजियस एजुकेशन की कि हम वो क्यों नहीं देते। इसलिए क्योंकि हमारे पास मल्टी रिलीजियंस होते हैं। हम किस एक रिलीजन की एजुकेशन दें और किस एक रिलीजन को छोड़ दें, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम रिलीजियस जो किसी भी तरह की एक्टिविटी है वो भी परफॉर्म नहीं करते, और किसी तरह की कोई एजुकेशन या रिलीजियस वाइज हम कोई काम नहीं करते, ताकि किसी दूसरी रिलीजन्स को कहीं पे भी हम मैं बिल्कुल भी किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती और ना ही मैं ऐसी कोई बात बोलूँगी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अगर हम सिर्फ एक रिलीजन की बात करें तो दूसरे को छोड़ दें। तो फिर भी दूसरे को भी तो बैलेंस करके चलना है, क्योंकि आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन के स्टूडेंट हैं। जब इस तरह की कम्युनिटी आपके पास होती है तो फिर आपको रिलीजियस या रिलीजियन एक्टिविटी पे बात नहीं करनी। वो जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू फिर आपको छोड़ना पड़ता है। वो हर बच्चे का पर्सनल और इंडिविजुअल मैटर है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। That's it. मिस मरियम, बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया और भरपूर कोशिश की कि जो है आप अपने सिस्टम को, हमारे सिस्टम को देखने वालों को एक्सप्लेन कर सकें मुझे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब ये जो हमारी एक सिस्टम है, इसमें ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? क्योंकि अभी तो ये नया सिस्टम है और इसमें जो है अभी मैंने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है। अभी हम सिर्फ, अगर मैं और भी इसको कुछ लफ्ज़ों में कहूँ कि अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रही कोशिश हम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन जो बाहर के आउटसाइडर है उनको लग रहा है कि ये बातें कर रहे हैं और किसी ने कुछ देखा नहीं। तो हाउ वी कैन डेवलप द, कि हम ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है इसके लिए? बिल्कुल, हम ये कहते हैं जब भी हमारे साथ कोई स्टूडेंट इनरोल होता है तो ट्रस्ट के लिए या एक्सपीरियंस के तौर पे, मतलब ट्रस्ट तो नहीं मैं कह सकती कि इतनी जल्दी कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं देता कि हाँ ठीक है हम एक कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम को जो कि 1 सालों से चला आ रहा है उसको छोड़ के और इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले। दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट और न्यू चीज़ है। और कोई भी अनोखी चीज़ जब किसी के हाथ भी लगती है तो बिलीव करना और उस पर उसको अमल करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये है, और ये नॉर्मल सी बात है कि आप इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। लेकिन मैं हमेशा हर जगह पे एक बात ज़रूर कहती हूँ, हर फोरम पे जहाँ पे भी मुझे चांस मिले इंटरव्यू के लिए या किसी भी तरह से बुलाया जाए, किसी भी चीज़ को दूर से बैठ के जज करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप समझ लें कि अंगूर खट्टे हैं। भाई आपने टेस्ट नहीं किया तो अंगूर खट्टे ही हैं।
जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं होगा वो मीठे थे या खट्टे थे। तो हाथ नहीं पहुंचा तो हमने ये कह दिया कि अच्छा चलो ठीक है अंगूर ही खट्टे हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो अंगूरों तक पहुंचने का रास्ता अगर मिल गया ना तो हम उन अंगूरों तक पहुंच जाए। और कोई एक से दो अंगूर चख के बता दें कि हाँ वाकई ये दरख्त ही खराब था या हमारा आना खराब था, तो आप बहुत अच्छे से रियलाइज कर लेते हैं। तो इसलिए हम सिस्टम के अंदर कोई भी अगर हमें ज्वाइन करता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ आए और वो इस सिस्टम को एटलीस्ट कोई 2 दिन 3 दिन के लिए ऑब्जर्व करें एज अ स्टूडेंट एज अ पेरेंट, ताकि उन दोनों को पता चल जाए कि सिस्टम में हो क्या रहा है। यू नो, जब हम कोई भी चीज़ अलग देखेंगे ना तो हमें बहुत डिफरेंट फील होता है कि पता नहीं हमें करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, डिसीजन ठीक है नहीं ठीक है, फिर मैं ये डिसीजन ले लूँ तो फिर आगे क्या फ्यूचर होगा, किस तरह से चलेंगे, क्या बच्चे कर रहे हैं, अच्छा वो बच्चा कर रहा है तो वो तो शायद इनका अपना भी हो सकता है जो कर रहा हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी सिस्टम एक्चुअली जो कुछ कह रहा है क्या वो उन बातों पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो दूर से बैठ के कुछ भी नहीं करें, एक बार प्लीज इसको एक्सपीरियंस कर लें। ना मेरी किसी चीज पे आपको कान रखने की जरूरत है ना किसी और की, खुद एक्सपीरियंस करके खुद अपना डिसीजन डिसाइड कीजिए। वेरी गुड आंसर। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपसे करूँगी क्योंकि मैं भी मदर हूँ, तो मैं भी पेरेंट्स की साइड पर से एक क्वेश्चन करूँगी जो हर पेरेंट के दिल में आता है कि अगर ये हुआ कि हम अपने बच्चे के जो कीमती साल हैं वो इस सिस्टम में लगा दें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ स्कूल नहीं जाते, सिर्फ इस सिस्टम का हिस्सा है वो। अब मैं अपने बच्चे के, यानी कि वो समझे 12 साल का है, उसके बाद 8 साल जो है मैं इस सिस्टम में अपने बच्चे को दे देती हूँ, वो 20 साल का हो जाएगा। और उसके बाद भाई यानी कि मुझे एक फ़ियर है कि भई अब मैं अपने बच्चे को भेज रही हूँ तो कहीं वो जो उसने डिग्री करने के उसके दिन थे, कॉलेज जाने के दिन थे, यूनिवर्सिटी जाने के दिन थे, वो उसने यहाँ पर लगा दिए, तो कहीं ये ब्रेक डाउन हो जाए और मेरे बच्चे के जो 8 कीमती साल हैं वो ज़ाया हो जाएँ। तो आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करेंगी कि भई यानी कि हम इस चीज़ को श्योर करें, या तो हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज या स्कूल भी साथ-साथ पढ़ाएँ, साथ-साथ इस सिस्टम का भी हिस्सा बनाएँ, तो फिर कितना बर्डन बन जाएगा। तो हम ये कैसे करें अपना ये जो फ़ियर है या मतलब यानी कि अनदेखी की जो होती है, तो वो कैसे हम इसको मतलब करेंगे एक्सप्लेन? अच्छा, ऐसा है मिस इरम कि जब एक बच्चा हमारे साथ जुड़ता है ना, आपको 1 साल के अंदर ही उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो पता लगने शुरू हो जाते हैं, बल्कि 1 साल भी बहुत ज़्यादा है, आपको 2 महीने में ही एसेस होना शुरू हो जाता है कि आपका बच्चा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, या ये सिस्टम आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उनको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप 8 साल तक वेट करें, आप 2 महीने बाद ही अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर सकते हैं। और आप किसी भी पॉइंट पे अपने डिसीजन चेंज कर सकते हैं, ये ऐसा हरगिज नहीं है कि आपने एक स्कूल में बच्चा ऐड कर दिया है और आपसे वो सिस्टम कहेगा कि अब ये बच्चा हमारा नहीं, नहीं, बच्चा अल्टीमेटली आप ही का है। अगर आपको 1 साल के बाद भी रियलाइज हो रहा है ना कि नहीं ये सिस्टम हमारे बच्चे के लिए नहीं है, देखिए हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस सिस्टम में भी नहीं चल पाए, वो वापस कन्वेंशन स्कूल में चले गए। बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्वेंशन स्कूल सिस्टम में नहीं चले, वो इस सिस्टम में चल गए। तो जहाँ पे कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी वो हर जगह रहती है। तो हर बच्चे को एक नज़र से तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट एबिलिटी रखी हुई है जो कि हमें या उस बच्चे को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है अपने बारे में। तो अगर आप इस सिस्टम के अंदर कोई भी बच्चा ऐड करते हैं बीइंग अ पेरेंट, तो आपको 2 महीने बाद पता चल जाता है कि आपको क्या इस बच्चे को कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना, क्योंकि आप और आपका बच्चा दोनों ही आपको प्रोग्रेस दे सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। जब आपका बच्चा आपको रिजल्ट दे रहा है और आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप उसको कंटिन्यू करा लें। आपको लग रहा है कि नहीं ये उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर आप उसको डिस्कस करें और उसके बाद उसको विड्रॉ करवा लें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूँ कि हमारा बच्चा जो इस सिस्टम के बाद किसी भी कन्वेंशन स्कूल में गया है, वो खुद इस चीज़ का रियलाइज़ करता है और उसके पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं कि बच्चे ने वाकई ही बहुत कुछ डिफरेंट सीखा है। और उसकी नो डाउट बहुत सारी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ हुई है जो कि इस सिस्टम के बगैर मुमकिन होती नजर नहीं आती थी। और इतने छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़े और क्लियर विजन के साथ काम करते हैं, कहीं नहीं देखे गए, किसी और सिस्टम में नहीं देखे गए। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो ये जवाब तो उन पेरेंट्स के लिए है जो कि गाय बगाए अपने बच्चों की जो रिजल्ट्स हैं उन पे नज़र रखते हैं। लेकिन मैं इस सिस्टम को देखती हूँ कि हमारा ये जो सिस्टम है रेहान स्कूल का, ये मदरसे के बच्चों को भी पढ़ा रहा है, मदरसे के आलिमों को भी पढ़ा रहा है।
और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ को पढ़ा रहा है, जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इतने वेल अवेयर ही नहीं है, या मैं कहूँ कि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को चेक कर सकें, जज कर सकें। वो तो कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम को भी वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे अब इस स्कूल सिस्टम को भी वो ट्रीट करें। मतलब आप समझ सकती हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी इसमें शामिल होंगे जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, देहातों में हैं, क्योंकि मैं खुद टीचिंग के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो जो बच्चे जिनको ना बिल्डिंग है, ना बेंच है, ना बुक्स हैं, अगर हम 20-30 हज़ार रुपए लगा के इस सिस्टम के ज़रिए इंटरनेट की सहूलत दे देते हैं तो उनके लिए ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर तो हमारे मुल्क में जहाँ पे आप चेंज की बात करती हैं, तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी है आबादी की वो तो अवेयर ही नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमने इस यानी कि नीश पर हमने अपने सिस्टम में क्या काम किया है कि हम उनको भी अवेयरनेस दें, ताकि हम जो है मेजर जो है वो बल्क जो कम्युनिटी है उसको जो है वो पढ़ा सकें, तो ही चेंज आएगा। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं मिस और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, अगर आप अपनी आवाज़ किसी भी मामले के में बुलंद करना चाहते हैं, तो आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड सुना जाता है, नॉट विद इन पाकिस्तान, आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करा देता है ये सोशल मीडिया। तो हमारी पूरी कोशिश है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रेहान अल्लाह वाला भाई साहब ने बहुत सारी अनाउंस की हैं। वो 200 स्कूल का भी नारा लगा चुके हैं कि इंशाल्लाह अगर लोग उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और इस सिस्टम को फॉलो करने का क्योंकि देखिए एक इंसान कितने एक स्कूल बना सकता है, हम सबको मिलकर उनका साथ देना है तो ये पॉसिबल हो पाएगा ना। एक इंसान अपनी जितनी एनर्जी है, जितनी पॉसिबल फाइनेंशियल उनके असिस्टेंस है वो सारी लगा रहे हैं। और अब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 6 कैंपसेस हमने बना लिए अपने, जिनमें से 5 जो है वो हमारे फिजिकल हैं और एक ऑनलाइन है। तो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बीइंग एन इंडिविजुअल ही इज डूइंग ट्रिमेंडसली अमेजिंग वर्क। लेकिन अगर हम ये देखें कि सिर्फ उन्होंने ही करना है तो फिर तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। होना तो तब है जब हम सब मिल के उनके साथ चले और मिल के उनके साथ काम करें। तो जितने भी लोग जो चाहते हैं कि अच्छा मेरे स्कूल में भी सिस्टम को आ जाना चाहिए, मेरे स्कूल में भी सिस्टम को आ जाना चाहिए, वो ज़रूर कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ हो सकता है इस दिए की रोशनी पहुँच जाए। ठीक कहा आपने, और मुझे भी ये बात महसूस होती है कि रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट जो है वो असल में जो है इसी चीज़ का नाम है कि हम बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने स्कूल्स बनाएं और इस सिस्टम को अपनाएं, और वो इस चीज़ में नई इनोवेशन भी लेकर आएँ और लीडरशिप भी लेकर आएँ और नई क्रिएटिविटी भी लेकर आएँ। तो जो हम अडल्ट्स को हम जो आकर पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को इस असूल के तहत जो हम इस चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि हम अपनी अपनी राय लाएं और हम चीज़ों को और बेहतर करें, अपना अपना रोल प्ले करें। तो बहुत आपने अच्छी बात की। तो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल से ताल्लुक़ कैसे जुड़ा? आपने यहाँ पर कैसे मतलब आई हैं? आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? अम, बस मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा कि मैं बहुत तंग थी कन्वेंशनल सिस्टम से और मैं नहीं चाहती थी कि मैं फर्दर कंटिन्यू करूं और मैं ये सारी चीज़ें करूं। तो मुझे बहुत डिफरेंट फील होता था कि नहीं, मुझे कुछ अभी भी करना है, कुछ कोई चीज़ अभी भी बाकी है। मैंने यहाँ भी पढ़ा के देख लिया, मैंने इतने अच्छे रिप्यूटेड वेल नोन इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा के देख लिया, मैंने नॉर्मल से नॉर्मल एक गाउंड स्कूल में भी पढ़ा के देख लिया। मुझे कहीं भी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, सिर्फ इस चीज़ के कि जो बड़े स्कूल हैं उनके ज़्यादा शशके हैं और जो छोटे स्कूल हैं वो बेचारे अपनी एक कैपेसिटी में रह के अपने काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे दिया जा रहा है, सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। जो बड़े स्कूल्स हैं जो कि लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, कराची के अंदर हैं, वो थोड़ा ये डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ की कम्युनिटी डिफरेंट है। क्योंकि कम्युनिटी तो डिफरेंस होगी ना, जब आप एक डीएचए के स्कूल को कंपेयर करेंगे गांव के साथ, तो आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि गांव के पास वो फैसिलिटीज नहीं है। गांव के स्कूल के अंदर तो पंखे भी बड़ी मुश्किल से चलाए जाते हैं और वो गांव का बंदा जो स्कूल बना के बैठा हुआ है उसने अपने ओन पे बनाए, और जो डीएचए वाले लोग बना रहे हैं उनकी अपनी बिजनेस की जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग उसने बनाया है और उस कम्युनिटी के लिए बनाया है जो वहाँ पे रहती है। तो वो कम्युनिटी आपको उतना ही पे करिए जो आप उनको वापस रिटर्न बैक कर रहे हैं, और गाँव के लोग पे क्या करेंगे जिनको आपने रिटर्न करना है। तो ये चीज़ें डिफरेंट थी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वो इरिटेट भी करती थी और समटाइम बहुत गुस्सा भी आता था। और दूसरा बहुत काम एक्स्ट्रा टीचर्स को करना पड़ता है, जो कि बहुत ही एक माजरत के साथ कि इतना वर्कलोड है टीचर्स पे कि स्टूडेंट भी परेशान है। मतलब सब काम स्टूडेंट के हिस्से पे सिर्फ एक पढ़ाई है और उसे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के अपने एग्जाम देने हैं, अपने नॉर्मल असेसमेंट्स पूरी करनी है, एंड दैट्स इट। पर टीचर जो है वो एक टाइम में आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है,
आपके स्कूल के जितने एक्स्ट्रा करिकुलर फंक्शंस हैं वो भी देख रहा है। इसके अलावा आपके जितने केपीओ के काम है, जो आपके क्लरिकल स्टाफ के काम है, वो भी आप टीचर से करा रहे हैं। रादर देन कि आप स्टाफ हायरिंग करें, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें और हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक काम जो आपने जिसके लिए हायर किया आप उससे वही कराएं। आप उनसे वो हर काम करा रहे हैं। और इसके बाद उस टीचर को इतनी फ्रीडम भी नहीं है कि वो टाइम से घर जा सके और घर जाके अपने बाकी चीजें देख ले। वो फिर 2 से 4 बजे तक रुकेगा, फिर अपने दूसरे काम पूरे करेगा और 4-5 बजे वो वहां से वापस जाएगा। और जब वापस जाएगा फिर एक एक्स्ट्रा होमवर्क साथ लेके जाएगा, जिसमें उसको प्लानर्स लिखने हैं, कॉपी चेकिंग साथ लेके जानी है। और अगर अदर देन कॉपीज कुछ नहीं है तो फिर स्कूल की डेकोरेशन के लिए भी उन टीचर्स को यूज किया जा रहा है। तो मतलब बहुत बड़ी हसल है जो बेचारी टीचर्स पूरी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी तंग करी थी। फिर एक चीज़ ये भी थी कि मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया था और वहाँ से जब मुझे वापस शिफ्ट होना पड़ा अपने गाँव में, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 10 साल लाहौर में रही और मैं लाहौर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये भी एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में अजीब एटीट्यूड है कि जब आप बड़े शहर से छोटे शहर में मूव करते हैं तो फिर आप एक माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है और माइंडसेट डिफरेंट होने की वजह से आप लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाते। तो यहाँ पे आके जब अपॉर्चुनिटीज देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज फील हुआ कि आप वहाँ पे एक अच्छी और हैंडसम सैलरी पैकेज ले रहे हो और यहाँ आके उसका एक 50% क्या 1/3 भी नहीं पे किया जा रहा प्रॉपरली आपको, और वो भी आपको सिर्फ इसलिए पे कर रहे हैं कि भाई हाँ आप हाईली क्वालिफाइड है, दैट्स इट। इसके अलावा आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है जिसपे आपको हम पे कर रहे हैं। तो ये भी हम आप पे एहसान कर रहे हैं, आपको पे किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ही पैनिक थी। और भाई मैंने सोच लिया कि मुझे अब नहीं पढ़ाना है कन्वेंशनल स्कूल में, बहुत पढ़ा लिया, अब नहीं मैं पढ़ाऊंगी। तो बस फिर ऐसे ही मैंने सरहान की बहुत सारी वीडियोस देखती थी। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, उससे 1 साल पहले से हमें परेशानी शुरू हो गई थी कि क्या करें, कहाँ जाएं, किधर देखें। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सरहान की वीडियोस को फॉलो करना शुरू किया, यूट्यूब पे देखा। अच्छा मैं बहुत ही यहाँ पे अपनी सुस्ती की बात शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो प्रेशर में बहुत अच्छा काम कर सकता है, और जितना ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल मेरा प्रेशर में नजर आता है ना, नॉर्मल डेज में शायद ही मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। तो जो मैंने अपने बारे में शायद एक क्लास में शेयर किया था कि मैं सारा कुछ कर लेती थी, एंड पे जाके कहती थी अब मैं थक गई, अब मैं सो रही हूँ। तो मैं एग्जाम की रात में पढ़ने वाला बच्चा हूँ। तो और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट वेरी गुड ग्रेड्स, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा और टीचर्स भी हमेशा बहुत अप्रिशिएटेड रहे। और आई वाज वेरी लकी रिगार्डिंग द टीचर्स एंड द पेरेंट्स एज अ स्टूडेंट। और मुझे हमेशा बहुत अप्रिसिएशन भी मिली कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ओबीडियंट है एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मैं नॉर्मल डेज में बहुत कम पढ़ती थी। एग्जाम से एक रात पहले मेरी नींदें उड़ी होती थी और फिर उस रात मेरी खाना पीना सब कुछ हो जाता था। तो मुझे यहाँ पे भी यही चाहिए था, इंडिपेंडेंटली मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो जब भी सरयान की वीडियो देखती थी, जब तक वीडियो 40 मिनट का चलता था मेरी मोटिवेशन मैक्सिमम होती थी। वीडियो इधर 40 मिनट के बाद खत्म, मोबाइल बंद, तो मेरी मोटिवेशन खत्म। तो मैं चाहती थी या अल्लाह किसी तरह से सर रेहान से मेरा एक मैसेज मिल जाए उनको, मैं उनसे बात कर लूँ कि मुझे सिर्फ वो अपने साथ किसी तरह भी ऐड कर ले ताकि मैं काम कर सकूँ। चलो और कुछ नहीं तो मुझसे हफ्ते में एक बार काम पूछ ही लिया अगर अभी तुमने ये काम किया कि नहीं किया। बट फिर मैं ये भी सोचती थी इतना बड़ा इंसान, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, कहाँ एक मरियम उसको नज़र आएगी और कहाँ वो ये फॉलो करेगा। बस इस डर से मैंने कभी मैसेज नहीं किया। लेकिन डरते डरते फिर एक दिन मैंने जब ये सुना कि करंगी कैंपस शुरू हो गया कराची का, और वो शुरू हुआ था 2022 में, तो मुझे वो कैंपस देख के इतना प्यारा लगा था कि मेरी बहुत बड़ी विश थी कि या अल्लाह कभी ऐसे स्कूल में मुझे पढ़ने का मौका मिल जाए, एक बार फिर से वो वापस बचपन दे दे, मैं पढ़ लूँ। तो वो तो हुआ ही। फिर मैं वेट कर रही थी कुछ ऐसा हो जाए कि ऑनलाइन ही चली जाए, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी कि मैं कराची जाऊँ, और कराची का नाम मेरे घर वाले सुनते बहुत डर जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं थी। लाहौर तक जाने की बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी। तो खैर मैंने फिर दिल पे पत्थर रखा, इंतज़ार करती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे पता चला 2024 जनवरी में कि सर रेहान ने अपनी एक वीडियो में बताया कि मैंने ना एक ऑनलाइन कैंपस शुरू कर दिया, और उसका लिंक इसके मेरी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ से आप जाओ और आप कॉन्टेक्ट करें। मैंने वो वहाँ पे भी फिर सुस्ती दिखाई और फिर 1 महीने बाद जाके मैंने कांटेक्ट किया। मैंने फरवरी में कांटेक्ट किया था और आगे से वो भी बहुत मसरूफ़ थी, और इन दिनों क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सिस्टम चल रहा था। आई टोटली एग्री, मैं उनको किसी चीज़ में भी बुरा नहीं कह रही और ना ही गलत बात कि उन्होंने 2 हफ्ते के बाद शुक्र है मुझे कांटेक्ट वापस कर दिया, क्योंकि मैंने कोई फ़ॉलो अप भी नहीं किया था। मैंने एक मैसेज करके मैं बिल्कुल भूल गई थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि मैंने बिल्कुल होपलेसली विदाउट एक्सपेक्टेशन मैसेज किया था। ऐसे चलो चेक करते हैं, जहाँ इतने सारे स्कैम्स और कर दिए वहाँ एक और थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कैम भी देखे थे।
अच्छा, मैंने कहा कि मैं अमेज़न सीखती हूँ। मैंने सीखने की कोशिश की, बड़ी हैवी अमाउंट दे दी, लेकिन अमेज़न भी नहीं सीख सकी। वो 1 हफ्ते की क्लास हुई, 1 हफ्ते के बाद अमेज़न वाला बंदा भाग गया। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है वो डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन किए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखती हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखती हूँ। फिर वही बात हुई कि उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर पकड़ा दिए, इसको जाके देख लो। अब भाई, अगर मुझे कहीं मसला आ रहा है, मुझे कुछ पूछना है, तो मुझे आपसे ही पूछना है ना। वीडियो तो नहीं मुझे बैठ के बताएगी कि भाई ये मसला है, इसको इस तरह फिक्स कर लो, अगर ये चले जा रहा है इसको इस तरह कर लो। वो भी ज़ाया हो गया, नहीं हुआ कुछ भी। अब वो वीडियो लेक्चर मैंने हार्डली 2 दिन देखे, उसके बाद मेरी वो भी मोटिवेशन खत्म। 2 दिन मैंने बड़े जोश से कुछ 4 के लेक्चर देख लिए, उसके बाद खत्म हो गया वो भी। और वो वैसे का वैसे ही कोर्स ज़ाया हो गया, क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन दी थी 1 साल की, और 1 साल में मुझे दोबारा इतनी मोटिवेशन आई नहीं कि मैं वो देख लूँ। इस तरह मैंने काफ़ी सारा ज़ाया करने के बाद सोचा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, यहाँ कुछ नहीं होना, पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो थरदौला से मेरी बात हुई, रमज़ान के दिन थे, जुम्मे का दिन था। तो 1:30 बजे मेरी बात हुई उनसे, तो मुझे फ़ोन करते कहते हैं कि एक मैसेज पहले आया था मुझे, वो पता नहीं किसने किया मुझे। उन्होंने पूछा कि आप ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं या फिजिकल कराची में आके करना चाहेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दौलत के नंबर फॉरवर्ड किए, इससे बात करने। अब मुझे पता भी नहीं वो कौन है, क्या नाम है उनका। मैंने हेलो बोला, साथ ही साथ दौलत कहते वीडियो कॉल ऑन करो। भाई, एक ऐसा बंदा जिसको आपने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, कोई बात नहीं, मैं वीडियो कॉल क्यों ऑन करूँ। पर मैंने उनसे थोड़ी रेजिस्टेंस शो की। मैंने कहा सर, अभी मैं अप्रोप्रिएट, एक तो मैं अप्रोप्रिएट हुलिया में नहीं, फिर मुझे क्या पता मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूँ या ना करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप मेरे साथ वीडियो पे नहीं आते, फिर मैं आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी। आई सेड ओके, मुझे आप 2 मिनट दें, मैं आपका वीडियो कॉल ऑन करती हूँ। मैंने 2 मिनट के बाद वीडियो ऑन कर दी। उन्होंने मुझसे बात की। बात करते उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल पूछे, क्या किया हुआ है, क्या करती हो, अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बताओ। मैंने अपना सारा इंट्रोडक्शन दिया। मुझे कहते हैं कि अगले 1 घंटे में ना मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, 3 बजे मेरी क्लास ज्वाइन कर लो। अच्छा, ठीक है सर, मैं कर लूँगी। तो कह रहे ज़ूम इंस्टॉल कर लेना, ज़ूम के थ्रू क्लास हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अब और तीसरी कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी काफ़ी इमरजेंसी में लग रहे थे, कोई काम था उनको शायद, इस वजह से फिर हमारी कोई बात नहीं हुई। मैंने 3 दिन क्लासेस ली। पहले तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे और मैं इतनी बड़ी, एक बहुत डिफरेंस है, कैसे सीखूंगी या इन बच्चों के साथ। शर्म भी आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन भी थे, बहुत कुछ था। अच्छा, खैर 1 दिन ज्वाइन किया, 2 दिन किया। शुरू शुरू में मुझे सर दौलत की बात करना जो है ना, वो बहुत डिफरेंट लगता था, तो बस ये चीज़ बहुत फैसिनेट की। फिर शाम में फिर क्लास हुई, वही वाली क्लास रिपीट होगी शाम में, फिर रात को 9 बजे ना, रमज़ान में। तो तब जो है वो एक हमारे रहमत एम्पावरमेंट वाला सर है, वो आ गए। उन्होंने क्लास ली। जब उन्होंने क्लास ली तो वो बोलना शुरू हो गए। उनकी आवाज़ में बहुत ही मिठास है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लहजा है उनका, दिल करता है सुनने को। अच्छा, फिर मैंने उन्होंने भी इंट्रोडक्शन लिया मेरा, उनको भी पता चला अच्छा ये है, इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो तीसरे दिन ना अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, ये हो क्या रहा है, ये कर क्यों रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद मुझे समझ में आना शुरू हुआ सिस्टम क्या है। देन आई डिसाइडेड कि हाँ मरियम, ये यही करना था तुम्हें जो तुम इतने देर से ढूंढ रही थी। एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 16 महीने हो गए उनके साथ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मच सेटिस्फाइड, और मैं बहुत खुश हुई सिस्टम को ज्वाइन करके। बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो मैंने नहीं की। तो ये स्टोरी थी मेरी। बहुत शुक्रिया मिस मरियम, आपकी जो बातें थी वो ऐसी थी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जो है ना किसी भी चीज़ को इंटरप्ट करूँ या आपका फ्लो जो है वो टूटे, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत अच्छा था और आपने बहुत ट्रू हार्टेडली जो है अपनी सारी बात जो है वो बताई है। और मैं ये कहूँगी कि आपके जज्बात, आपके दुख और आपकी ख्वाहिशात हम दोनों की मुझे लगता है एक जैसी हैं। बहुत सारे सिनेरियोज हमारी सोसाइटी में हम सबके साथ ही हो रहे हैं, तो हम उसको महसूस भी करते हैं। और जब दुख एक जैसे हों और हमें तकलीफ़ें एक जैसी हों या हमेशा जो वाक़यात हुए हैं वो एक जैसे हों, तो हम रिलेट करते हैं, हाँ, हाँ, ये वाक़ई चल रहा है यार, ये चीज़ें वाक़ई ऐसे हैं। तो बहुत अच्छी आपने बात की और अल्लाह ताला आपको जो है अपने मकसद में और कामयाब करे। और अब मैं आपका दुःख समझ सकी हूँ, तो जो आपकी जो है प्रॉब्लम्स वो मैं और बहुत अच्छे तरीके से मेरे दिल में, अगर मैं कहूँ कि बात जब असर करती है वो इस तरह करती है, तो बात दिल पे असर की। तो आखिर में बस आखिरी सवाल मिस मरियम, छोटा-सा एक मैसेज दें, वो ये कि सिस्टम में और हम सब लोगों को, जो आप अभी लोगों में, हम सब में थोड़ी-सी कमी महसूस करते हैं कि आप बेटा ऐसे ना करो, ये चीज़ें ऐसे जो हैं वो अच्छी नहीं है, या ऐसी चीज़ों को ऐसे बेहतर कर लो। तो आप कोई छोटी-सी एडवाइस करें।
सबसे पहले सीरम, अभी तो मुझे खुद बहुत सारी नसीहतों की, मशवरों की ज़रूरत है, तो मैं क्या ही एडवाइस करूँगी, क्योंकि मैं खुद आपकी तरह एक लर्नर हूँ छोटी सी, और मेरी पूरी कोशिश है मैं आप सबसे बहुत कुछ सीखूँ, और नो डाउट बहुत सारी चीज़ें मैं रोज़ सीखती भी हूँ। तो बस मैं आप जो खुद करती हूँ मैं सिर्फ वही कहती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद जो काम करते ही नहीं है ना, आप दूसरे को कहते अच्छे नहीं लगते। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि थोड़ा करें लेकिन कंसिस्टेंसी काम करें, कुछ भी कर लें। ये नहीं फर्क पड़ता कि अच्छा हमने बैठ के पॉडकास्ट ही करने जो मरीम कर लिया, ये नहीं फर्क पड़ता कि हमने बैठ के सोशल मीडिया पे आना नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं है। आप उसी सोशल मीडिया को दूसरे डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप रोजाना करें, अपने लिए रास्ते खुद तलाश करें कि आप किस तरह से अपने लिए बेहतरी कर सकते हैं। बस इतना काम कर लें और अपने आप पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मिस मरियम, आपने ये जो 40-50 मिनट दिए हैं, इन वक्तों का आपने हक अदा किया है और आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने देखने वालों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूँगी और उम्मीद करूँगी कि हमारा कनेक्शन और बेहतर हो, हम दोबारा बात करें और हम अपने लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, ताकि हमारे लोग जो हैं वो समझ सकें कि किस वक्त हमारी ज़रूरत क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने अपना रास्ता क्यों तब्दील कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सब देखने वालों के, और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।